अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे अब्दुल्ला शामीर कहते हैं और मैं आपके साथ मौजूद हूँ आज एक नए लेक्चर के साथ। और today we are going to discuss about the perspectives of religion. We are going to discuss about the core perspectives of religion. We will further discuss more about the impact and the criticisms and evaluation part of these perspectives. We need to understand this core concept that religion, according to some perspective, religion is a conservative social force, while according to some perspective, religion is a force for social change. Okay, if we talk about the traditional perspectives like traditional functionalist, traditional Marxist, and traditional feminist also, all these theorists are going to emphasize on one thing, that religion is a force, is a conservative social force. It means religion stabilizes the society. For functionalists, it is a very good thing, but for the Marxists, this is not a good thing. But Marxists argue the same thing, that the religion is going to stabilize the society in the favor of capitalism. But according to functionalists, the functionalists are going to emphasize on this idea that the religion stabilizes the society to create the value consensus and collective conscience. Okay, so this is more about the idea. If we talk about the traditional functionalists, they are also arguing one thing, that the religion is a social force for the social stability, or you can say that religion is a conservative force, while according to Marxists, while according to traditional Marxists, they are also emphasizing on one thing, that religion is also a force for the social stability, or it is a conservative social force, but is a negative sense, because according to Marxists, traditional Marxists, the religion stabilizes the society in the favor of capitalism, in the favor of the ruling class or the bourgeoisie. Okay, but if we talk about the functionalists, they are going to emphasize this thing, that religion stabilizes the society in the favor of the society. Okay, because according to functionalists, all the social institutions are very important because they are performing some important functions within the society. But according to Marxists, these social institutions, once they are performing the functions, these functions will definitely give help to the capitalist class. Okay, so we are moving with this core idea. But if we move further on, so we need to understand one more thing, that is religion is a force for the social change? Yes, of course. According to neo-functionalist, according to neo-Marxist, according to Weberian perspective, the religion is a force for the social change. Okay, because the neo-functionalist criticizes the traditional functionalists by giving the religion as a status of conservative force, which is not applicable to as a force for social change. But neo-Marxists assume this idea that the religion could be the force for the social change, as they study a lot of societies like Iranian Revolution. Once they study the liberation theology, so there is this, once they study all of these things, so they describe the religion as a force for the social change. Okay, but if we move forward, if we move forward to the neo-Marxism also consider, at some extent, they consider religion as a force for the social change. As Robinson gives the 6 arguments in which he argues that if the scenario is fulfilling these 6 arguments, then the religion could be the force for the social change. These arguments are, if there is no possibility of political dissent, then the religion could be the force for social change. The religion of the oppressed group and the religion of the capitalist group must be different. Clergy should support the oppressed class. Am I right? So if all these clauses are fulfilled, then according to neo-Marxists like Robinson, religion could be the force for the social change. Okay, so this is all about the core idea what I am going to teach today. So if we move further on, if we talk about the Weberian perspective, Max Weber also considered religion as a force for the social change, because they can understand the religion as a force for the social change by giving this argument that the whole system of the society is going in one way, that the belief, action into change. Belief is all about the individual perspective, individual ideas, individual perception, and that individual perception lead towards an action, and that action may lead towards change.
belief, action into change. The Weberian perspective gives an example of Calvinist sect, where there is a protest, in which, according to Marxists, there is a structural change. Listen to me. There is a structural change in the development of capitalism. Okay, but according to Weberian, the Calvinism were the split for the capitalism. Calvinism were the split for the capitalism. How? According to Max Weber, the Calvinism develops the ideas within an individual's mind. Calvinism develops the belief within an individual's mind in the favor of capitalism. All those beliefs may lead towards action, and that action lead towards social change in the form of capitalism. So if I am going to summarize this concept, like according to traditional functionalists and according to traditional Marxists, the religion is a conservative social force. But if we talk about the neo-functionalist, neo-Marxist and Weberian perspective, the religion is a force for the social change. Okay, so if we move, I hope at this point we are clear now. Once we are moving forward, we need to understand this concept, what is meant by sociological perspectives in terms of religion, particularly if we talk about the functionalist perspective. Whenever we talk about the functional perspective, we need to discuss one very important sociologist, that is all about Emil Durkheim. Okay, so Emil Durkheim is one of the key sociologists once we are talking about the religion. So first, we need to understand the key concepts which were given by the Emil Durkheim. Number one was value consensus, where there is an agreement over the values. The second concept was collective conscience, how the collective conscience could occur, and how the value consensus would be achieved with the help of religion. We are going to discuss this core idea. Okay. If we move forward, the Durkheim argues that the role of religion in creating and maintaining value consensus. What is this all about? The role of religion in creating, the Durkheim emphasizes on the role of religion in creating and maintaining value consensus, the agreement over the values. Okay, how the religion is creating that value consensus, we need to discuss about it. Okay, that value consensus could be created with the help once the religion differentiate between the sacred and profane. The sacred and profane. There are some very important things within the society which are considered as sacred, and there are some very important things within the society which are considered as profane. Sacred stands for things that inspire feeling of fear and wonder. यानी कि कोई बहुत ही important चीज हो, बहुत sacred किस्म की चीज हो. Let's say वो holy water है, water होता है, ठीक है, लेकिन holy water is very important water. Okay. उसी तरीके से पूजा वगैरह में इस्तेमाल होता है. इसके अलावा अगर हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करें, कोई लेट्स सपोज सेक्रेड मील की बात करें, न्याज वगैरह, इट्स कंसिडर्ड एज अ सेक्रेड मील. ओके, सो सेक्रेड थिंग्स दैट इंस्पायर फीलिंग ऑफ फियर एंड वंडर. प्रोफेन स्टैंड्स फॉर द ऑर्डिनरी थिंग्स विथ नो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस. अब लेट्स सपोज एक मील है, एक स्पिरिचुअल मील है विच कंसिडर्ड एज न्याज, एंड एक रेगुलर मील है, ठीक है. अब वो क्या है? दैट इज सेक्रेड एंड दैट इज प्रोफेन. एक इंपॉर्टेंट चीज से, अब क्या जो सेक्रेड चीजें होंगी सोसाइटी के अंदर, वो वैल्यू कंसेंसस क्रिएट करेंगी. दैट दीज ऑल सेक्रेड एलिमेंट्स विल क्रिएट द वैल्यू कंसेंसस विद इन द सोसाइटी. इट मींस ऑल दीज सेक्रेड एलिमेंट्स विल क्रिएट एग्रीमेंट ओवर द वैल्यूज. द ऑल सोसाइटी इज गोइंग टू एग्री ऑन दिस थिंग, दैट दिस थिंग इज सेक्रेड एंड दिस थिंग इज profane. That is all about the value consensus. कि पूरी सोसाइटी एक पॉइंट पर एग्री हो गई है, पूरी सोसाइटी एक पॉइंट पर एग्री हो गई है, ठीक है जी. अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को आगे हम पढ़ाते हैं टोटिज्म के कॉन्सेप्ट है. टोटिज्म का मतलब क्या है? If you are worshipping a tree, if you are worshipping an animal, सही है. Like let's say if you talk about the Hindu religion, they used to consider monkey as a Hanumanji, and the cow as Gau Mata. They all are totemism. We can say all these elements are totemism. Study of the Durkheim study the Aboriginal Aranta clans को उसने study किया था. Aboriginal, इसमें आप इसको stats के तौर वो reference के तौर पे आप mention कर सकते हैं. The Durkheim study the Aboriginal Aranta clans को उसने study किया. उसने कहा कि भाई ये जो totem का ritual होता है, जो totem का ritual होता है, ये क्या करता है? Worship of a totem, worship of a society. अब पूरी society, एक इंसान अगर totem की इबादत कर रहा है, it means कि वो society की इबादत कर रहा है. ये बिल्कुल उसी तरीके से if you worship the God, it means you worship the society. It means पूरी सोसाइटी का एक कलेक्टिव कंसाइंस एक पॉइंट पर आके एग्री हो गया. जब सारे लोग एक पॉइंट पर आगे एग्री हो गए तो क्या होगा? आप अगर उस चीज की इबादत करेंगे जिसको पूरी सोसाइटी कंसिडर करती है सेक्रेड एलिमेंट, तो
इसका मतलब आप सोसाइटी की बात मान रहे हैं, ठीक है जी। तो इट मीन्स इफ यू वर्शिप द गॉड, इट मीन्स यू वर्शिप द सोसाइटी, ठीक है। इफ यू वर्शिप द टोटम, इट मीन्स यू वर्शिप द सोसाइटी। आप सोसाइटी की एग्रीड वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। टोटम रिचुअल क्या करता है? टोटम की बात का रिचुअल जो है कहता है रीइंफोर्स सॉलिडारिटी एंड बिलोंगिंग, यानी कि आप जब उसकी इबादत करोगे, सही है, आप उसको बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करोगे, आप अपनी बिलोंगिंग को बोलोगे यार हमारा क्लैन जो है इस पर्टिकुलर टोटम की इबादत करता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर पुराने ज़माने की बात करें तो वो कहते थे जैसे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले हर कबीले का अपना बुत हुआ करता था, दैट इज ऑल अबाउट टोटम, ठीक है। अब वो क्या है? इट मीन्स अब हर कोई बंदा जो उस बुत की इबादत कर रहा है दरअसल वो अपने 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 ट्राइब के साथ बिलोंगिंग और सॉलिडारिटी शो कर रहा है, ठीक है। दैट द टोटम रिचुअल लीड टुवर्ड्स रीइंफोर्स द सॉलिडारिटी एंड बिलोंगिंग, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो टोटिज्म का जो एलिमेंट होता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर होती है, यानी कि हम क्या करते हैं, इंसान क्या करता है, कहता है कि भाई ये जो टोटम है ना इसके अंदर बहुत सारी पावर है, यानी कि आप कहते हैं ये इंसान की औकात से बढ़कर है, ठीक है। अब वो गौ माता में भी हो सकती है, हनुमान जी में भी हो सकती है, वो किसी आइडल में भी हो सकती है, वो किसी भी चीज़ के अंदर, वो किसी दरख्त में भी हो सकती है, किसी फ्रूट में हो सकती है, ठीक है। अब क्या है, अच्छा मुस्लिम टोटम के अंदर आप हजर अस्वद जो होता है, जो ब्लैक स्टोन है, आप उसको टोटम कंसिडर कर सकते हो कि पूरे लोग उस चीज़ के साथ कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इंडिविजुअल इज डिपेंडेंट, यानी कि आप दिखा रहे हो इंसान जो है डिपेंडेंट है उस पर्टिकुलर चीज़ के, उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, यानी कि उस पर्टिकुलर चीज़ के पास ज़्यादा पावर मौजूद है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ, ओके। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे लेके चलूं, जिसमें हमारा दर्कहेम का कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव कंसाइंस आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं बैठ जाता हूं ताकि इसको नजर आ जाए आराम से। अच्छा जी, हाँ ये सेट हो गया। अच्छा जी, अब मैं अगर इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, दैट इज ऑल अबाउट दर्कहेम कलेक्टिव कंसाइंस का जो कॉन्सेप्ट जो आता है हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जाता हूं कि द सेक्रेड सिंबल्स एंड टोटम रिप्रेजेंट द कलेक्टिव कंसाइंस, पूरी सोसाइटी का एग्रीमेंट, एक कलेक्टिव कंसाइंस नजर आ रहा है उस एक पर्टिकुलर चीज़ के थ्रू, ठीक है जी। कहता है नेटवर्क ऑफ शेयर्ड बिलीव्स एंड नॉलेज, एक ऐसा एक नेटवर्क क्रिएट होता है शेयर्ड बिलीव्स एंड नॉलेज का जो एक कलेक्टिव कंसाइंस की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा रिमाइंड द इंडिविजुअल ऑफ द पावर ऑफ सोसाइटी, एक इंसान को रिमाइंड कराई जाती है बात कि इंसान की औकात कुछ भी नहीं है, सही है। क्या कहता है? रिमाइंड द इंडिविजुअल ऑफ द पावर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के अंदर ज़्यादा पावर है। अगर आप इस चीज़ की बात करें इसका मतलब है आप सोसाइटी की बात को एग्री कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट आते हैं जो इसी आइडिया को कंटिन्यू करके लेके चलते हैं। उनका नाम है मेलिनोस्की, सही है, मेलिनोस्की, MALINOWSKI, ठीक है। वो क्या कहते हैं? रिलीजन प्रमोट्स सॉलिडारिटी थ्रू परफॉर्मिंग साइकोलॉजिकल फंक्शंस फॉर इंडिविजुअल्स कोप विद इमोशनल स्ट्रेस। इंसान जब स्ट्रेस में होता है तो उसको खुदा याद आ जाता है, तो कहता है कि रिलीजन ये इंसान को एक तरह से सुकून देने का जो काम है रिलीजन का, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट उसका रिलीजन का फंक्शन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर पार्सन्स की बात करें तो पार्सन्स क्या कहते हैं? रिलीजन हेल्प्स पीपल टू कोप विद द अनफोर्सीन इवेंट्स एंड अनकंट्रोलेबल आउटकम्स, ठीक है। यानी कि आप वो किस तरह से करते हैं? वंस यू डिस्क्राइब एवरीथिंग एज अ डेस्टिनी, तो आप क्या कर रहे हो? अनकंट्रोलेबल इवेंट्स को आप बोलते हो यार डेस्टिनी में लिखा, किस्मत में लिखा था, हमको क्या कर सकते हैं, ठीक है। रिलीजन क्रिएट्स एंड लेजिटिमेट्स कंट्रोल वैल्यूज, ठीक है, यानी कि सेंट्रल वैल्यूज। रिलीजन क्या करता है? रिलीजन क्रिएट करता है और उसको लेजिटिमेट हैसियत देता है सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी की सेंट्रल वैल्यूज होती हैं। अब मार्क्सिस्ट क्या करेगा आगे जाके? इसी सेंट्रल वैल्यूज को आगे कैपिटलिस्ट वैल्यूज लिख देगा, खत्म कहानी, मार्क्सिस्ट भी आ जाएगा कि रिलीजन क्या कर रहा है? क्रिएट भी कर रहा है, लेजिटिमेट भी कर रहा है, किसकी वैल्यू को? कैपिटलिस्ट वैल्यू को, सही है। अब पार्सन कहेगा रिलीजन इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ मीनिंग, मीनिंग देता है लोगों। इसके अलावा आप बुक के अंदर एल्पर्ट वगैरह जो स्टडी है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसी के हवाले से, एप्लीकेशन के हवाले से मैं बात करूंगा, क्रिटिसिज्म पे बाद में बात करूंगा, पहले मैं इस थ्योरी पे बात करूंगा, दैट इज ऑल अबाउट बेला की थ्योरी है जिसमें उसने सिविल रिलीजन्स की बात की है, ठीक है। अब मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ, ये जो सिविल रिलीजन की अप्रोच है ना बॉस, इसके लिए किसी खुदा पर ईमान होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट कि आप सोसाइटी पर आपका कितना यकीन है, ठीक है।
अगर हम सिविल रिलीजन की एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो हमारे पास नाजी जर्मनी की एग्जाम्पल आ जाती है, ठीक है। हमारे पास आ जाती है किसकी एग्जाम्पल, हमारे पास आ जाती है रशिया की एग्जाम्पल, ठीक है। रशिया वाले किसी खुदा पर यकीन तो नहीं रखते थे, बेटा समझिएगा, खुदा पर यकीन तो नहीं रखते थे, ठीक है। अब जब वो खुदा पर यकीन नहीं रखते थे तो हम कहेंगे क्या रिलीजन पे यकीन नहीं, उनका रिलीजन है, वो एक अपनी फॉर्म है जो सोसाइटी के। एक्चुअल में सिविल रिलीजन का काम ज़्यादातर फंक्शनल होता है एज कंपेयर टू बिलीफ, ज़्यादातर फंक्शन यानी कि जो फंक्शन होते हैं यानी कि सॉलिडारिटी क्रिएट करना। अब लेट्स सपोज नाजी जर्मनी में आप आर्यंस को सुपर यानी कि द वर्ल्ड बेस्ट सिविलाइजेशन कंसिडर कर लो, आप कुछ भी कर लो, दैट इज ऑल अबाउट, वो तो रिलीजन आइडियाज है ना, रिलीजियस आइडियाज है, बट वो खुदा पर यकीन नहीं रख रहे, ठीक है। तो अगर मैं बेला की थ्योरी कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ मल्टी फेथ सोसाइटी लाइक यूएस, यानी कहता है कि भाई ये जो सिविल रिलीजन्स होते हैं क्या कर सकते हैं, मल्टी फेथ सोसाइटी को एक यूनिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। सिविल रिलीजन अटैचेस सेक्रेड क्वालिटीज टू सोसाइटी इटसेल्फ, यानी कि सोसाइटी के अंदर ही सेक्रेड क्वालिटीज को कर लेते हैं। अमेरिकन कल्चर की बात कर सकते हैं, अमेरिकन सिविल रिलीजन की बात, भाई अमेरिकन कल्चर इज द बेस्ट कल्चर, ठीक है। फिर आगे कहते हैं सिविल रिलीजन्स कैन आल्सो बी पॉलिटिकल एंड डज नॉट हैव टू इन्वॉल्व बिलीफ ऑफ गॉड इन गॉड, खुदा पे यकीन करने की जरूरत नहीं है, लाइक नाजी जर्मनी एंड हमारे आपका रशियंस जो होते हैं। तो पहला की ये थ्योरी सिविल रिलीजन की बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा अब हमें क्रिटिसिज्म्स के ऊपर, इवैल्यूएशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। क्रिटिसिज्म कहता है द एविडेंस ऑफ टोटेमिज्म इज अनसाउंड। बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने कहा कि भाई जो टोटेमिज्म के वाले से आपने जो एविडेंस दिए हैं ये बड़े अनसाउंड हैं, ठीक है। जिसमें वर्सले कहते हैं देयर इज नो शार्प डिवीजन बिटवीन सेक्रेड एंड प्रोफेन। दुनिया के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर सेक्रेड और प्रोफेन के अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं पाए जाते हैं। इनफैक्ट विद इन द रिलीजन भी बहुत सारे सेक्रेड एंड प्रोफेन में डिफरेंसेस नहीं है। अब लेट्स सपोज सऊदीज़ हैं, वो टोटेमिज्म पे बिल्कुल यकीन नहीं रखते, सही है, वो सेक्रेड और प्रोफेन पे कोई ज़्यादा यकीन नहीं रखते, ठीक है। तो भाई ऑटोमेटिकली ये वाली बात, ये बात यहाँ पे क्रिटिसिज्म में आ सकती है कि टोटेमिज्म की बात को आप अपोज कर सकते हो। डर्कheim's थ्योरी इज एप्लीकेबल टू स्मॉल स्केल सोसाइटी विद वन रिलीजन। डर्कheim की जो थ्योरी है बहुत ही स्मॉल ट्राइबल सोसाइटीज़ में एप्लीकेबल हो सकती है, ऐसी सोसाइटी पे एप्लीकेबल। अब जाहिर सी बात है ना, एक सोसाइटी जिसमें 10 किस्म के रिलीजन है, हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट देम, वो कलेक्टिव कंसेंसस क्रिएट होएगा नहीं। अब हर क्लैन जो होगा अपने तरीके से चीज़ों को फॉलो कर रहा होगा, लेकिन एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सिर्फ एक रिलीजन फॉलो हो रहा है, हाँ वहाँ पर ये डर्कheim की थ्योरी इंप्लीमेंट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अगले सोशियोलॉजिस्ट आते हैं मेस्ट्रोविक। मेस्ट्रोविक एक पोस्ट मॉडर्निस्ट से कहते हैं दीज आइडियाज आर नॉट एप्लीकेबल टू कंटेम्परेरी सोसाइटी एज डाइवर्सिटी हैज फ्रेगमेंटेड द कलेक्टिव कंसाइंस। जो डाइवर्सिटी है वो तो खत्म कर देती है ना कलेक्टिव कंसाइंस को, कलेक्टिव कंसाइंस के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल रोन के रख देती है, बिकॉज वो तो कलेक्टिव कंसाइंस कहता है एक तरह के आइडियाज होने चाहिए, डाइवर्सिटी कहती है आप जो डालना है यहाँ पे डालो, ठीक है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टिल फंक्शनलिज्म। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मार्क्सिज्म की बात करते हैं।